क्या आपको पता है आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी हमारी साइंस आज कहाँ तक पहुँच चुकी है। आज ये यूके यूरोप जैसी कंट्री में लोगों का जीवन बदल रही है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेल्थ, लाइफस्टाइल, और आज का ये एपिसोड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जो आज कल के दौर में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और स्ट्रेस डिसऑर्डर में कहाँ हमें हेल्प कर सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर पूनम। वेलकम टू द शो। इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। सो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर पूनम जी एंड अशोक जी कि आपका आयुर्वेद का डिसीजन लेना कैसे हुआ और आपकी इंडिया से लेके यूके तक की आयुर्वेदा में जर्नी कैसी रही। Thank you very much, Seema ji, inviting us on your show. And these shows is really very helpful for people to understand that how Ayurveda can help them in their day-to-day life. In regards to our journey, we both took admissions in Ayurvedic Medical College in Rohtak, Sri Baba Ayurvedic, one of the renowned Ayurvedic institutions, Sri Baba Masnath Ayurvedic Medical Institution in 1996. And we really we loved our journey. You know, it was we thought just we made for it. You know, that's how was the feeling when we took the admissions into Ayurvedic Medical College. And after getting graduations in our Ayurvedic Medical Science in 2000s, then obviously we decide to start Ayurveda, and we decide to implement that knowledge, what we learned, what we experienced through our educations and trainings, and into the society. Then in 2001 we set up one of the first Ayurvedic hospital in India. And Poonam decided to pursue Ayurveda through modern outlook and decided to do PG in dietetics, which is a very important part of Ayurveda as a science. Ahar and Vihar is one of the pillar of Ayurvedic science. So she decided to come to UK and study further dietetics. Then obviously she then did masters from Glasgow universities, and I was busy in establishing my Ayurvedic hospital. When she finished her master's degree in dietetics, then we decided both together, let's start in UK, because we realize that this is the society which needs the Ayurveda the most. Yeah, sure. And we were right. We were right 25 years ago that this society is in a crisis when it comes to lifestyle disorders and stress-related challenges. Challenges we have is not getting addressed fully by Western medicine approach, where we need the traditional medicines to support those challenges. And I think that thoughts which comes to our mind 25 years ago was right. And obviously then in 2005, we started our journey of Ayurvedic science in this country. Wow, that's really inspiring. And clearly shows Ayurveda has no boundaries. That's right. Ayurveda is a science which doesn't have any boundary because it's a tradition. It's just not a science. People think it's just a medical science. No, Ayurveda is actually science of life, which give you insight about everything what happening in your life. So it's different than just for a science. Yeah. It's not originated from laboratory. It's originated from nature. Yeah. So that is beauty of Ayurveda. Yeah, आयुर्वेदा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन यूके का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो स्ट्रेस लेवल है, और डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेस, यू कैन से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो इसको कैसे आप अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस यूके के लोग आयुर्वेदा को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आप देखें तो हम लोग डिजिटलाइज ज़्यादा हो गए हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट ज़्यादा हो गए हैं, और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं, जितना स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं, मेंटल हेल्थ इलनेसेस जो हैं आप पिछले दौर में देखें इन द लास्ट 2 decades देयर हैज़ बीन अ ह्यूज सर्च।
तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कनेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट एंड टू आइडेंटिफाई वेयर वी एक्चुअली वेंट रॉन्ग। देखिए यहाँ पर आयुर्वेद की अगर आप तुलना करेंगे मॉडर्न साइंस से, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दीज टू साइंसेज टुगेदर कैन नॉट अकम्प्लिश। क्योंकि हम लोग आयुर्वेद में बात करते हैं ये नहीं कि दर्द कहाँ हो रहा है तो मलहम कहाँ लगाई जाए, हम लोग आयुर्वेद में बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई है शुरू, इसका कोर एसेंस क्या था, कहाँ पर आप इम्बैलेंस में गए, और हम उस कोर इश्यू को मैनेज करने की बात करते हैं। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की। और जितनी भी आपने चीज़ें बताई कि हम लोग अपने सेल्फ से अवेयरनेस से दूर होते जा रहे हैं, जिससे कि इम्बैलेंस बन रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली ये हेल्थ इश्यूज शुरू हो रहे हैं। तो इन एसेंस आयुर्वेद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम खुद को कनेक्ट करते हैं खुद से, और फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि उस इम्बैलेंस से एक बैलेंस्ड स्टेट में आने की। क्योंकि आयुर्वेदा इज़ ऑल अबाउट अ बैलेंस। आयुर्वेदा इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग योर सेल्फ टू द कोर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिवेंट करें कि ऐसी कोई भी इलनेसेस सामने आए। बिकॉज इफ़ देर आर सर्कमस्टांसेस जो अनअवॉइडेबल भी होते हैं, वहाँ से अगर आप एक इलनेस की तरफ आते हैं, देन आयुर्वेदा वर्क्स ऑल्सो टूवर्ड्स ट्राइंग टू गेट यू टू अ बेटर हेल्थ। बट द फर्स्ट line of treatment of Ayurveda is prevention, and then it is treatment of the ill, which is आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेदा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, तो इंडिया का आयुर्वेद यूके के लाइफस्टाइल में, यूके की जो हेल्थ कंडीशन लाइफस्टाइल जो है, तो उसको यहाँ पे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा प्लीज़। देखो क्या है सीमा जी, अगर आप देखेंगे आज हमारे पास वेस्ट में जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गट हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। ट्रू। और ये भी ट्रू है, एंड आई थिंक आई एम नॉट बायस्ड टू से हियर कि वेस्टर्न मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशंस नहीं है। दे सपोर्ट इट बट नॉट अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट। एंड जो ये चैलेंजेस हैं इनका मेडिसिनल सॉल्यूशंस नहीं है, बेटर कि हम इनको प्रिवेंट करें। अब जो प्रिवेंशन है वो क्या है, वही तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिवेंशन है। आयुर्वेद कहता है कि आप किसी भी बीमारी को पहले किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं आज के दिन डायबिटीज़ केसेस का। जी। प्री डायबिटिक केसेस में आप डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप रिवर्स कर सकते हैं। अर्ली डायबिटीज़ मैनिफेस्टेशंस में भी अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें आप चैलेंजेस जो हैं वो जो अगर आप आयुर्वेद से अपने लाइफस्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं तो आप उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, कि आपने डिजीज को मैनिफेस्ट होने से ही प्रिवेंट कर लिया। सो दैट्स व्हाई आयुर्वेदा इज, आई कैन से, द करंट नीड ऑफ of the Western society, and Ayurveda is one of the best science to address the challenges our society are facing today. Yeah, that's really great. And ये और पूछना चाहूँगी मैं, यूके में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बर्मिंघम में आपका क्लिनिक है उधर, तो काफ़ी सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे कौन से कॉमन केसेस आपके पास आते हैं जो आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं? जब से हमने यूके में प्रैक्टिस करना शुरू किया है, सम ऑफ द कोर इश्यूज दैट वी सी रेगुलरली आर इश्यूज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू ऑल द गट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्पेशली जिसमें आप कॉमनली कंडीशंस आती हैं डाइजेशन इश्यूज़ की, ब्लोटिंग की, इरेगुलर बाल मूवमेंट्स की, एंड देन स्ट्रेस रिलेटेड जो कंडीशंस मैं बात कर रही थी उसमें मेनली आपकी मेंटल हेल्थ इलनेसेस आती हैं, आपके जितने भी स्लीप इश्यूज़ हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि एंग्जाइटी इज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग पीपल टू पैनिक अटैक्स, एंड ऑल्सो देर आर इश्यूज़ रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, जिसमें कि आपके जो हार्ट इश्यूज़ आते हैं, डायबिटीज़, जो लॉन्ग टर्म कंडीशंस हैं या फिर जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इसके अंदर आती हैं, और उनसे ओरिजिनेट होती हैं हमारी क्रोनिक इलनेसेस और हमारे जॉइंट इश्यूज़। ये सारी जो कंडीशंस हैं, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो फूड है, लाइफस्टाइल है, दैट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। सो दीज आर इवेंचुअली ऑल्सो लीडिंग टू थिंग्स विच आर लाइक hormonal issues and leading to like problems with ovaries like PCOS, even general
lifestyle situations like a woman going through menopause. It should be a natural process. Lekin menopause has become an illness in nowadays in the current society. So these are the kind of things that we very regularly address in the society today. True, yeah. यहाँ यूके का ये लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट आई नो इज बिजी वेरी बिजी लाइफस्टाइल एवरीवन जस्ट running here and there even they can't I mean when they finish their work they just buy food from outside just eating I mean wrong food you can say junk food they are eating anyway आप आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से क्या हम इसकी रूट कोज तक पहुंच सकते हैं कि कोई भी जैसे डिसऑर्डर है एंग्जाइटी और डिप्रेशन इस तरह की स्लीप डिसऑर्डर हैं तो आयुर्वेदा के प्रोस्पेक्टिव से क्या कहना चाहेंगे आप बेसिकली अगर आप इन जो भी ये इश्यूज हैं दे कम्स अंडर मोर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स स्लीप डिसऑर्डर्स स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स गट इश्यूज इवेंचुअली दे आर ऑल रिलेटेड टू द स्ट्रेस और इनको बात जब हम बात करते हैं कि रूट कोज की एनीवे क्योंकि इन सारी चीज़ों का रूट कोज है हमारी डे टू डे लाइफ में जो इम्बैलेंस है वो इनका रूट कोज है जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तो हम उस रूट कोज को एड्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इफ समबडी इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाइन एवरी डे एंड यू हैव ए फैटी लीवर सो फैटी लीवर कैन नॉट बी रिवर्स अंटिल ही डोंट स्टॉप ड्रिंकिंग इट्स वेरी सिंपल same thing if somebody is eating a junk food every day and he is having a hyperlipidemia means high cholesterol and hypertension high blood pressure so he has to reverse his habit and where there is importance of ayurveda comes is that ayurveda says कि जो कारण है उसको ही रिमूव करो अगर आपको बीमारी को ठीक करना है तो कारण जब तक आप जो उसका कोज है तब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे you never gets better and that's true but the problem is that you know what is interesting problem going on in the society today they love to take medicine for hypertension but they don't want to give up the junk food it's very simple so then they keep on taking the medications for life that's why in most of the disease people taking end up medicines for life because they don't want to address the cause and I think what eventually happens is you are taking the medication for the issue that you have, but the course that the disease is taking is faster than what the medication is helping. Because if the course of the disease is faster, it is still going to develop as a bigger condition. So you have to address it from all different angles. You have to take care of your diet, you have to take care of your lifestyle, and you have to include herbs to come back to the understanding where you can actually work on the balance. Okay, आप हमारी ऑडियंस के इस बिजी लाइफ में कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि जो 2-3 टिप्स जो एवरी सिंगल डे दे प्रैक्टिस में लेके आ सकें Okay, I think it's very interesting आपने जो कहा कि कुछ health tips because in Ayurveda I would say talk about prevention. Because health tips are which are actually helping you prevent a problem to come or a health problem to actually develop. That is preventative Ayurveda. And I think when we talk about preventative Ayurveda, I think Ayurveda first asks us to take care of our biological rhythm or our dincharya. That is the first and foremost thing to take care of. So when you get up in the morning, it's very important that you have room temperature water so that you can ignite your Agni. Because digestive fire or Agni is the root cause of more than 80% of health illnesses today. So that's the first and the most important thing to do. And in order to do that, it's very important to clean your tongue and also use coconut oil so that you can do tongue scraping at the same time because unless you prevent the ama or the toxins, that is again another important reason why you can actually take care of all the preventative solutions to the health problems that are coming up in the future. So make sure that you're drinking hot water or warm water. Very important कि आप सवेरे उठकर पानी पिएं अगर मौसम ठंडा है तो आप हल्का गर्म पानी ले सकते हैं लेकिन जितना हो सके अपनी टंग स्क्रैपिंग ज़रूर करें या अपने लिए सूटेबल ऑयल कोई आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं उससे आप उसको गंडूश धारण आयुर्वेदा कहता है विच यू कीप कोकोनट ऑयल इन द माउथ एंड यू एज लॉन्ग एज यू कैन देन ट्राई टू कीप ऑन rinsing it around your mouth and then you spit it out. That really helps to clear a lot of toxins which have developed overnight because रात भर आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली
काम कर रही थी, इट वाज ट्राइंग टू एक्सक्रीट ऑल दोज टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल एंड कैन कॉज हेल्थ इश्यूज। सो उसको आपने क्लियर करना है। फिर आपने अपनी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने हल्का पानी पीना है, स्लाइटली लूक वार्म वाटर आप ले सकते हैं, जिससे अपनी डाइजेस्टिव फायर को और आप इग्नाइट कर सकते हैं। Wow, very nice. I really like how simple and powerful tips are. We should try every day. प्रैक्टिस में लानी चाहिए ये चीज़ें ना। और ये मुझे अच्छा लगा जो आपने बताया, ऑयल लेके उसको जो भी बताया आपने, इट्स आई थिंक इज, मुझे पता है मेरी कज़न कर दी थी ये, लेकिन मैंने कोशिश की करने की, लेकिन ऑयल जो सुबह सुबह करना होता है वो नहीं हो पाया। दोबारा से ट्राई करूँगी। ओके, बहुत लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद एक बहुत ही स्लो काम करता है और ये एक हर्ब तक ही सीमित है। तो अशोक जी, अकॉर्डिंग टू यू, आयुर्वेदा से रिलेटेड कौन सा बिगेस्ट मिथ आज क्लियर होना चाहिए? ये सबसे आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स, जो लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता है, और ये हमने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में प्रूव किया है। हमारे 85 से 90% केसेस में हम ये कहते हैं कि अगर आपको 3 दिन में आयुर्वेदिक मेडिसिन से आराम नहीं आए तो आप फ़ोन करके आकर के हमारे क्लिनिक पे अपना जो है वो मेडिसिन को चेंज करवा सकते हो। सो दैट मच कॉन्फिडेंस वी हैव इन आवर प्रैक्टिस एंड वी प्रूव इट ओवर एंड अगेन कि आप जब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू करते हैं 2-3 दिन के अंदर आपको पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग विद इन माय बॉडी। इट्स वेरी सिंपल। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लोग जो हैं वो आयुर्वेद को उन बीमारियों में यूज करते हैं जो अनट्रीटेबल डिजीज हैं, जिनको थोड़ा सा भी जिनमें चेंज लेके आने के लिए बहुत समय चाहिए। चाहे आप उसमें वेस्टर्न मेडिसिन यूज कर लीजिए, आप देखिए कि अगर लोग डायबिटीज के लिए आयुर्वेद को लेना चाहते हैं, या अर्थराइटिस के लिए लेना चाहते हैं, या सोराइसिस के लिए लेना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसी डिजीज है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मोस्टली आयुर्वेद को लोग जब वेस्टर्न मेडिसिन फेल हो जाती है ना, तो वो तब आयुर्वेद को एक्सेस करना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि जो उनकी बीमारी है, जो उनका डिजीज है, उस डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत समय चाहिए जी। और वहां वो आयुर्वेद को यूज करते हैं। तो इट्स द डिजीज इज गोइंग टू टेक टाइम, इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदा। यस, ये तो खैर अगर इफ दे एक्सपेक्ट दैट आयुर्वेदा विल वर्क अकॉर्डिंग टू द वे वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि आयुर्वेदा एक होलिस्टिक साइंस है। आयुर्वेद में हम जो है वो एक, मान लो एक प्लांट है, अगर हम आपको एग्जांपल दे, तो एज ए पूरे प्लांट का जो भी हम वो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं होलिस्टिकली, एक सिंगल एल्कोलॉइड कंपाउंड यूज नहीं करते जो वेस्टर्न मेडिसिन में करते हैं। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन में समय लग सकता है, बट क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आयुर्वेदा इज नॉट ए स्लो साइंस। आयुर्वेदा से जो रिजल्ट आता है दैट इज मच मोर पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल in chronic disease management. So Ayurveda, I'm repeating it again, is not a slow science. It's depend how you use it, where you use it, and for the what purpose you are using it. So whatever जिस चीज़ के लिए भी आयुर्वेद हम ले रहे हैं तो अच्छा है उसको पहले से रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, टाइम से लें और टाइम से बिल्कुल आपको उसका इफेक्ट होए। बिल्कुल आपको अगर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो किसी को ब्लोटेडनेस है, आप कितने मिनट में रिलीफ लेना चाहेंगे ब्लोटेडनेस में? As soon as possible. आयुर्वेद में 5 मिनट में हो जाता है। इससे ज्यादा फास्ट क्या चाहिए आपको? आपने मेडिसिन ली, यू फील इट। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, लो एनर्जी है, ब्लोटिंग है, इन केसेस के अंदर तो आयुर्वेद का रिजल्ट इज अमेजिंग एंड वेरी क्विक रिजल्ट्स। वेरी क्विक रिजल्ट्स। आप एक्जिमा में देख लीजिए, आप एक्जिमा में कंपैरेटिव स्टडी कीजिए कि आपने एक बच्चे को या किसी भी इंसान को आयुर्वेद से 1 साल ट्रीट किया, वेस्टर्न मेडिसिन से ट्रीट किया, आउटकम देख लीजिए। आप कहेंगे आयुर्वेद तो 5 टाइम्स मोर फास्टर है डर्मेटाइटिस मैनेजमेंट में, और एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम कोर टू गिव यू द सेम रिजल्ट जो कि आप किसी और तरीके से लेना चाहेंगे। और यहाँ मैं स्पेशल यहाँ की बात नहीं करूँगी, आजकल स्लीपिंग डिसऑर्डर इतना बढ़ रहा है कि लोग पिल्स लेके तब सोते हैं और तभी नींद आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनकी आदत पड़ जाती है ओवर टाइम। बिल्कुल।
और आयुर्वेद इज जस्ट नॉट, अगेन आपने जैसे बोला कि इट्स अबाउट आयुर्वेद इज नॉट ओनली अबाउट हर्ब्स इज जस्ट 25% ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. Ayurveda is a science of life which is originated from nature. So everything what exists in the nature is belong to Ayurveda. It's just not herbs. तो ये मिथ आज क्लियर हो गया कि आयुर्वेदा स्लो नहीं है. And it's not only about herbs as well. It's a much more wider science. जी. Much more deeper science. अशोक जी और पूनम जी, मैं आपसे नेक्स्ट ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेदा का ग्लोबली क्या फ्यूचर है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताएं. आप देखें तो एक तरीके से आयुर्वेद लुप्त था और सडनली कंडीशंस ऐसी अराइज हुई हैं जिनका आंसर कहीं और नहीं मिला तो आयुर्वेद में ही मिला. तो आप देखें कि जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, आज एक बहुत बड़ी टर्म है, फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल साइकोलॉजी या लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है. आयुर्वेद ने तो 5000 साल पहले ये बात कर दी थी कि लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है. द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा इज डाइट एंड लाइफस्टाइल. तो जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं तब तक लाइफस्टाइल है और तब तक अपने आप को कनेक्टेड रखने की इम्पोर्टेंस है, तो तब तक आयुर्वेदा की भी इम्पोर्टेंस है. And going back into the cycle again, until we realize कि we are not connected to ourselves, until we connect to our own circadian rhythm, until we are not careful about our own digestive fire, our own metabolism, we cannot come out of the cycle of lifestyle disorders. So the future is only making it more global. The future is only about Ayurveda becoming more powerful so that we all become more powerful. We all go back to our own basics, learning who we are, why we are doing what we are doing, and staying connected and totally aware of why we are doing certain things we are doing. Why are we sleeping late? Why are we actually eating the Sorry. So the future of Ayurveda lies with the future of us. And if we have a bright future, Ayurveda has a bright future indeed, because Ayurveda is going to stay a part and parcel of our lives. And the more digital we are becoming, the more disconnected we are becoming from ourselves, the more Ayurveda will only be the one way to empower ourselves and be ourselves. Ashok ji, Poonam ji, thank you so much for sharing your valuable knowledge and experience with us today. It's truly insightful and inspiring. Thank you everyone. आप सभी को अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Thank you.